student, Jai Hind. I welcome you all in my biology classes with Chandrakant sir. Clear? Student, we are dealing with the chapter sexual reproduction in flowering plant. आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट इस चैप्टर पे बेस्ड वो है pollination in the flowering plant. Clear student? You all are aware of this word pollination. क्लास 7th में भी आपने पढ़ा है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में. Clear? So let us discuss with the definition of the pollination. What do you mean by pollination? Simply we can say it is a process of transfer of pollen grain from anther to the stigma. Clear student? This is the definition. जब anther mature हो जाता है student तो dehiscence takes place and the pollen grains are released and they should reach on the stigma. Clear? By various agencies, either by air or by water or by any means insect and other animals. Clear? So the process of transfer of pollen grains from anther to the stigma is called as pollination. Clear? Now student, you have to focus on the types of pollination. Clear? Let me tell you about the two types of pollination. आप लोग इस दोनों वर्ड से familiar हो, self pollination and cross pollination. Clear student? So you have to focus now on self pollination. What is self pollination? Let me explain you. Clear? I have a flowering plant with me. You have to focus. There are so many flowers you can see here. Clear? So the self pollination means when the pollen grains of a flowers falls on the stigma of the same flower, this is called as self pollination. Again I am telling you in another way, the transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower of the same plant. ये दो चीजें मैंने आपको बताई, आप देखो ध्यान से सुनो. Suppose that we have a flowering plant. अगर इस फ्लावर के pollen grains इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं, यहां से निकल के यहां जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी. क्लियर स्टूडेंट? और अगर इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन इसी प्लांट के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज गिटोनोगैमी. क्लियर स्टूडेंट? व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी. और जब पॉलन ग्रेन किसी एक फ्लावर से निकल के उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज गिटोनोगैमी. क्लियर? ये दोनों स्टूडेंट टाइप्स होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के. क्लियर? नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर? सपोज दैट these are the two plants of the same species. Clear student? There are two plants. Clear? This is suppose a mustard plant 1, mustard plant 2. Clear? So when pollen grains from the plant A falls on the stigma of another flower of another plant of the same species, this is called as cross pollination. इस प्लांट के फ्लावर से पॉलन निकल के इस प्लांट के किसी भी फ्लावर पे जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रॉस पॉलिनेशन. और यहां से निकल के अगर इस फ्लावर से पॉलन जाके यहां जाते हैं, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर स्टूडेंट? सो आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर? सो लेट मी डील इन सम डिटेल. क्लियर? So self pollination, again you listen, it is the process of transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower or anther to the stigma of another flower of same plant. Clear? This is called as self pollination and it is of two types, autogamy and गिटोनोगैमी. Autogamy refers to the transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower. And गिटोनोगैमी, it is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower of the same plant. Clear student? एग्जामिनेशन में, स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन में या नीट एग्जामिनेशन में गिटोनोगैमी से ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं. क्लियर? तो लेट मी टेल यू
द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्लियर स्टूडेंट? ऑटोगैमी में क्या है? इट इज ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? इट इज अ ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन, यानी अपना ही पॉलन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है। क्लियर? गिटोनोगैमी में क्या है? इट इज जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन बट इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? जेनेटिकली हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्लावर एक ही प्लांट का है, दोनों फ्लावर जिनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है दोनों एक ही प्लांट के हैं। लेकिन हम क्रॉस इसलिए बोल देते हैं क्योंकि एक फ्लावर के पॉलन दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं। दैट इज वाई इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। These lines are mentioned in the NCERT book. Clear student? So next देखो, जनरली ऑटोगैमी हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, जबकि गिटोनोगैमी में क्या है? गिटोनोगैमी में फ्लावर्स में भी यूनिसेक्सुअल। क्लियर? फ्लावर्स आर जनरली यूनिसेक्सुअल। क्लियर? हियर इन ऑटोगैमी आप देख सकते हो pollination takes place within the same flower. Here the transfer of pollen from anther to the stigma of another flower of the same plant. Clear? Here for autogamy pollinators are not required, but here in case of gitonogamy pollinators are required. Clear student? So far I have discussed about the self pollination, autogamy and gitonogamy. Clear? Now let me tell you in one line about the cross pollination. पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, it is the process of transfer of pollen grains from anther to the stigma of another flower of another plant of same species. ये चीज आपको याद रखना है, another flower of another plant of same species. Clear students? So this is about the cross pollination. Clear? So now let me tell you about the advantages and disadvantages of self pollination. Clear student? Advantages and disadvantages of self pollination. Clear? So you can see here advantages में self pollination में क्या है? Pollination is certain. Pollination is certain. It is an independent process. Clear? Second, purity of generation. Clear? It ensures the purity of the generation. Clear? Good characters can be preserved. Clear student? Good characters can be preserved. तो ये तो advantages हो गया self pollination का। disadvantage क्या है? Continuous self pollination results in formation of weaker plants. Clear? This is the inbreeding depression. Clear? और no variation takes place. So variety change नहीं हो सकती स्टूडेंट, कोई नया species का formation नहीं हो सकता, नई variety नहीं बन सकती है। So this is called as what? Disadvantage. Clear? Now advantages of cross pollination. Cross pollination तो in general आप याद रखिएगा, this is far better than the self pollination. Clear? So cross pollination it brings more genetic variability with better adaptation. यानी cross pollination से जो नए प्लांट बनते हैं स्टूडेंट, आप देखोगे उनमें ज्यादा adaptive features होते हैं। Clear? They have more adaptive features. Clear? ये आप याद रखिएगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू वैरायटी। ऑलवेज वेरिएशन टेक्स प्लेस। क्लियर? वेरिएशन रिजल्ट्स इन adaptations. Clear? And adaptation enable the plant to survive in the changing environment. Clear? So we can say that cross pollination is far better than the self pollination student. Clear? Now disadvantage of cross pollination बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो हियर यू कैन सी वेस्टेज ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? पॉलन ग्रेन वेस्ट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड, देन इट इज अ डिपेंडेंट प्रोसेस एज इट रिक्वायर्स एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन। क्लियर? क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसके लिए एजेंसीज चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंसीज चाहिए। क्लियर? सो दिस इज द एडवांटेज। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। सो 2 डिसएडवांटेज हो गए, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड, यानी पॉलिन का वेस्टेज होता है, और दूसरा आप देखोगे कि यहां पे एजेंसीज चाहिए स्टूडेंट, पॉलिनेटिंग एजेंसीज। क्लियर? सो विद दिस
I am just going to conclude in brief about the self pollination and क्रॉस पॉलिनेशन. एक लाइन में आप याद रखिएगा, when the pollen grains from the anther falls on the stigma of same flower or another flower of same plant, this is called as self pollination. Or when the pollen grains from an anther falls on the stigma of another flower of another plant of same species, this is called as cross pollination. Clear, student? So now I am just going to explain you about the you can say the what are the various adaptive features that ensure the self pollination and cross pollination. अब फ्लावर में या पौधे में वो कौन से एडाप्टिव फीचर्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं. यानी वी विल डिस्कस आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस also. Clear, student? Till then you can have a look on the board. Clear? You can take a shot also. So let's continue with the topic adaptation for self pollination and cross pollination. Clear, student? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. यानी एक फ्लावर के अंदर या प्लांट में ऐसे कौन कौन से एडाप्टिव फीचर हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं. क्लियर? आप लोग हर सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट. क्लियर? क्योंकि यहां से क्वेश्चन रेज किया जाता है एग्जामिनेशन में. क्लियर? तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए लेट अस डिस्कस अबाउट द सेल्फ पॉलिनेशन, एडेप्टेशन इन सेल्फ पॉलिनेशन. सो पहला जो पॉइंट है स्टूडेंट वो है बाइसेक्सुअलिटी. क्लियर? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का या प्लांट का बाइसेक्सुअल होना बहुत जरूरी है. स्पेशली फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना बहुत जरूरी है. Both the sex organs should be present in a single flower. That promotes self pollination. Clear? उसके बाद homogamy. Clear, student? Homogamy का मतलब होता है क्या? The maturity of male reproductive organ and the female reproductive organ should be simultaneous. यानी there should be synchrony in the pollen release and stigma रिसेप्टिविटी. क्लियर? यानी पॉलन ग्रेन का रिलीज और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी दोनों सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए. क्लियर, स्टूडेंट? दिस प्रमोट्स सेल्फ पॉलिनेशन. अगर दोनों का मैच्योरिटी ड्यूरेशन डिफरेंट है तो किसी भी कीमत पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता. तो फ्लावर में होमोगैमी का होना बहुत जरूरी होता है. यानी एंथर का और स्टिग्मा का दोनों का एक साथ मैच्योर होना इज कंपल्सरी. दिस इज कॉल्ड एज होमोगैमी. क्लियर, स्टूडेंट? और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए देयर इज अ डिजाइन इन द फ्लावर, दैट इज देयर आर सम फ्लावर व्हिच आर कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर. क्लियर? और द क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट. क्लियर? तो क्लिस्टोगैमी क्या है? दीज आर द फ्लावर व्हिच नेवर ओपन्स. दीज आर द फ्लावर व्हिच रिमेन्स क्लोज्ड. तो जब फ्लावर क्लोज रहेगा, बंद ही रहेगा, एक तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है और दूसरा फ्लावर क्या है? क्लोज्ड है. क्लोज्ड फ्लावर्स आर कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर. क्लियर, स्टूडेंट? कोमेलाइना में, ऑक्जेलिस में, वायोला में हम ये सारी चीजें देखते हैं. इवन अरैचिस जो प्लांट होता है यानी मूंगफली का जो पौधा होता है वो भी क्लिस्टोगैमस होता है. क्लियर, स्टूडेंट? तो यहां पे क्या है, जब फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे नहीं और that ensures the self pollination. Clear, student? So clistogamous या clistogamy it promotes self pollination. Clear, student? तो क्लिस्टोगैमी के बारे में एक चीज और आप जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस assured seed set even in absence of pollinator. ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने इसको मार्क कर दिया अलग से, आप देख सकते हो. Clear, student? Clistogamous flowers produce assured seed set even in absence of pollinator. ये इसका एडवांटेज है. पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि what do you mean by the cleistogamy and what is its advantage? So the flower which never opens, they are called as clistogamous flower. Clear? And clistogamous flower ensure the assured seed set formation without any pollinator. So ये मैंने आपको बताया, these are the adaptation in the flower that ensures the self pollination. कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम बताएंगे स्टूडेंट, जैसे लिखा हुआ है इन अरैचिस, हाइपोजिया और ग्राउंडनट.
क्लिस्टोगैमी इज अकम्पनीड बाई जियोकार्पी। यानी यहां पे खास चीज आप देखोगे, फ्लावर क्या होते हैं, लगते तो ऊपर हैं, लेकिन जब पॉलिनेशन होना होता है तो वो नीचे जमीन में चले जाते हैं। मूंगफली आप देखोगे हमेशा जमीन के अंदर होती है, जबकि फ्लावर वो ऊपर लगते हैं। जो लोअर फ्लावर्स होते हैं वो नीचे चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज जियोकार्पी। क्लियर? एंड दैट प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, फिर भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? कि मूंगफली हमेशा जमीन के नीचे होती है, जबकि उसका फ्लावर जमीन के ऊपर होता है। क्लियर स्टूडेंट? और कोमेलाइना इज इंपॉर्टेंट फ्लावर, वायोला एंड ऑक्जेलिस। ये जो तीन पौधे का नाम मैंने लिया है स्टूडेंट, ये दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा हुआ है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड कैस्मोगैमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमस तो मैंने आपको बता दिया है, आई टोल्ड यू अबाउट द क्लिस्टोगैमस फ्लावर, द फ्लावर व्हिच रिमेन्स क्लोज दे आर कॉल्ड एज द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लियर स्टूडेंट? एंड द फ्लावर व्हिच रिमेन एक्सपोज्ड, जो खुलते हैं, खिले हुए जो फ्लावर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द कैस्मोगैमस फ्लावर। क्लियर? तो कैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लियर स्टूडेंट? ये दोनों तरह के जो फूल होते हैं वो एनसीईआरटी में लिखा है, एग्जांपल कोमेलाइना, वायोला और ऑक्जेलिस में पाए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? जो ऊपर के कोमेलाइना पूछा था, ऊपर के जो फ्लावर्स होते हैं जो ऊपर लगते हैं वो कैस्मोगैमस होते हैं, जो लोअर होते हैं दे आर द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये नीट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर स्टूडेंट? 2014 का ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है एग्जामिनेशन में, पीएमटी एग्जामिनेशन में। क्लियर? सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये बहुत अच्छे से आप लोग सुनिए, क्योंकि एक अलग टॉपिक दिया हुआ एनसीईआरटी में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के नाम से। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मींस what are the adaptive features or the various adaptive feature or the modification in the flower that check self pollination and promotes cross pollination। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्लियर? सो लेट मी डिस्कस वन बाय वन द वेरियस पॉइंट्स। व्हाट आर द वेरियस features present in the flower that ensures cross pollination and check self pollination। तो पहला ही हमारा जो पॉइंट है वो है डाइक्लाइनी और द यूनिसेक्सुअलिटी। फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो या तो वो मेल फ्लावर होगा या वो फीमेल फ्लावर होगा। यानी फ्लावर विल बी आइदर स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। फ्लावर विल बी आइदर स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। Clear? So this modification promotes cross pollination instead of self pollination। दूसरा है डाइकोगैमी। क्लियर स्टूडेंट? डाइकोगैमी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है डाइकोगैमी, यानी मैच्योरेशन ऑफ स्टेमन एंड द स्टिग्मा, ठीक है, occurs at different time interval, means there is no any synchrony between the pollen release and stigma receptivity। Clear student? Either pollens are released much before the stigma become receptive or stigma become receptive much before the pollens are released। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। क्लियर? सो अब इस पॉइंट पे बेसिस हम कहेंगे कि देयर आर 2 केसेस, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। ठीक है? प्रोटेंड्री, लेट मी टेल यू अबाउट द प्रोटेंड्री। प्रो मींस फर्स्ट, एंड्री मींस एंड्रोसियम। क्लियर स्टूडेंट? जब पॉलन ग्रेन्स पहले मैच्योर होकर रिलीज हो जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोटेंड्री, यानी स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही एंथर मैच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोटेंड्री। और सेकंड केस जो हमारा है प्रोटोगाइनी, प्रो मींस फर्स्ट, गाइनी मतलब गाइनीशियम। when gynoecium matures first means when the stigma become receptive much before the pollen release, so this case is called as protogyny। clear student? so प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एंड दीज 2 केस इट प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन इंस्टेड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? अब बारी आती है सेल्फ स्टेरिलिटी। क्लियर? यानी देयर आर सम बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है स्टूडेंट, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बट देयर स्टेमन रिमेन्स स्टेराइल। क्लियर? तो वो स्टेमन होते तो हैं उनमें, बट they are not able to produce pollen grains। clear? so this case also promotes cross pollination। clear?
और एक चीज मैं और आपको बताऊंगा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी यहां पे क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी अपना ही फ्लावर, अपना ही स्टिग्मा अपने ही पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है। आइदर द पॉलन ग्रेन्स आर रिजेक्टेड, द सेम पॉलन, अपने ही फ्लावर का पॉलन जब स्टिग्मा पे जाता है तो स्टिग्मा रिजेक्ट्स द पॉलन ग्रेन, क्लियर, और द पॉलन ग्रेन फेल टू जर्मिनेट, और कभी कभी जर्मिनेट कर भी जाता है पॉलन, सो द पॉलन ट्यूब कैन नॉट ग्रो, स्टिग्मा पॉलन ट्यूब को ग्रो करने से रोक देता है। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एज द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर स्टूडेंट, अगला जो डिवाइस होता है दैट इज द हेटेरोस्टाइली। क्लियर, हेटेरोस्टाइली यानी आप देख सकते हो कि जो स्टाइल होता है उसकी लेंथ डिफर करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू फिलामेंट ऑफ द स्टेमन। देयर आर टू केसेस, आप देख सकते हो स्टूडेंट, बहुत साफ साफ दिख रहा है। इन फर्स्ट केस दिस इज कॉल्ड एज पिन आइड फ्लावर। इस केस में आप देखोगे कि स्टाइल इज मच लॉन्गर देन द स्टेमन, स्टेमन का जो फिलामेंट है वो छोटा रहता है, यानी दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। क्लियर, एंथर और स्टिग्मा के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो गई, तो दिस केस प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। सो ये फर्स्ट केस इसको बोलते हैं पिन आइड फ्लावर। इसमें स्टिग्मा जो होता है वो बहुत ऊपर होता है, स्टाइल लंबे हो जाने की वजह से। दे हैव द लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट फिलामेंट। क्लियर, जो सेकंड स्टेज है आप देखोगे इसमें जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। क्लियर स्टूडेंट, इसमें जो स्टाइल होता है वो शॉर्ट होता है और जो स्टेमन का फिलामेंट होता है वो बहुत लंबा होता है, तो अगेन देयर इज अ डिस्टेंस। सो दिस इज द केस ऑफ हेटेरोस्टाइली। सो हेटेरोस्टाइली इट प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन इंस्टेड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर स्टूडेंट, सो दीज आर द डिवाइसेस दैट प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन इंस्टेड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। स्टूडेंट एक बार फिर मैं बता दूं, ये जो टॉपिक था हमारा ये था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एज पर एनसीईआरटी कंटेंट। क्लियर, एनसीईआरटी के हिसाब से ये टॉपिक का नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी द वेरियस एडाप्टिव फीचर प्रेजेंट इन अ फ्लावर दैट चेक्स क्रॉस पॉलिनेशन एंड दैट प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन एंड चेक्स सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर स्टूडेंट, यानी फूल के अंदर वो सारे एडाप्टिव फीचर जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आता है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं ब्रीफ में एक बार पॉइंट आपको बता दूं, फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना यानी डाइक्लाइनी, ठीक है, डाइकोगैमी, क्लियर, सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और हेटेरोस्टाइली, ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया है ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, यानी दीज आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। Clear student? So I hope that you are now able to understand the various adaptation for self pollination and cross pollination. Clear student? ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेरे लेक्चर को बार बार सुनिएगा। क्लियर, ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं these are very important from board point of view as well as the competitive point of view. Clear student? So brief में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। शुरू में मैंने सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ाया, उसमें आपको गिटानोगैमी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है स्टूडेंट। अगर 10 बार पॉलिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है तो 6 बार उसमें से गिटानोगैमी के बारे में पूछा जाता है। क्लियर, आपको एग्जांपल्स को फोकस करना चाहिए। दूसरा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर और कैस्मोगैमस फ्लावर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, उसके बाद फिर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्लियर, सो विद दिस आई एम जस्ट गोइंग टू कंक्लूड माय लेक्चर, टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द pollinating agent and the pollinators. Clear student? Till then you keep on watching my video, watch all my previous videos. Clear? आप एक के बाद आप देखते जाओगे, चीजों को कोरिलेट करते जाओगे, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी माय डियर स्टूडेंट। क्लियर, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और कहना चाहूंगा स्टूडेंट कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज देखी हैं। क्लियर, उसमें वो लोग नेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर क्वेश्चन रेज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एकदम साफ शब्दों में बोलूंगा, क्लियर कट में बताना चाहूंगा कि नेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग होती है, 50% इंफॉर्मेशन आर रॉन्ग।
क्लियर? सो आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए और कुछ स्टैंडर्ड बायोलॉजी की बुक को फॉलो करिए जिसमें कंटेंट जो रिसर्च करके डाले जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो मैं ये सजेशन आपको दे रहा हूं कि स्टिक टू द एनसीईआरटी कंटेंट एंड फॉलो अ वेरी गुड बायोलॉजी बुक। क्लियर स्टूडेंट? बहुत ज्यादा आप नेट पे रिसर्च मत करिए, नेट पे सर्च मत करिए टॉपिक को, क्योंकि आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर? और यहाँ पे जो हम लोग वीडियो में जो कंटेंट डाल रहे हैं वो ऑलरेडी हम लोग अच्छी बुक से कंसल्ट करके ही डालते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। Clear? Whatever the queries you have, you directly contact me. You can ask me. I am always with you. I am here to sort out your all the problems. तो पढ़ाई बहुत ही स्मूथली करिए, घबरा के मत करिए। सफलता स्टूडेंट एक दिन में कभी नहीं मिलती है, मगर आप प्रयासरत रहो तो एक दिन जरूर मिलती है। थैंक यू वेरी मच।